Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Nutrition in Animals. Food is one of the most essential things for the living organisms to survive, as it provides them energy. Except for the plants, which can prepare their own food, each organism is dependent on other organisms to get its food directly or indirectly. So all these organisms are heterotrophic. Animals take in complex food nutrients which are broken down into simple substances inside the body by digestion process. Then only the simple substances can be used by the body. Animal nutrition includes A. Nutrient requirement, B. Mode of intake, C. Utilization of nutrients. See, previous chapter में हमने nutrition plants में पढ़ा था, अब इस chapter में पढ़ेंगे nutrition in animals. As you know that food एक बहुत ही important substance है हर living organisms के लिए. Survive करने के लिए उन्हें energy provide करता है. Except plants, क्योंकि plants क्या है कि अपना खाना खुद से prepare करते हैं. बाकी हर organism जो है वो directly या indirectly दूसरे पे dependent होते हैं अपने food के लिए. Okay? So जो भी animals dependent होते हैं उन्हें हम कहते हैं heterotrophic, as we discussed earlier in the previous chapter. Okay? तो एनिमल्स क्या करते हैं, वो लेते हैं फूड न्यूट्रिएंट्स को जो फिर ब्रेक डाउन होते हैं सिंपल सब्सटेंस में बॉडी के इनसाइड बाय डाइजेशन प्रोसेस. तो इसी के बाद ये जो सिंपल सब्सटेंस है तभी जब वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे सिंपल सब्सटेंस में तभी बॉडी से यूटिलाइज करनी पड़ेगी, राइट. तो एनिमल न्यूट्रिशन में देखिए आपके 3 प्रोसेसेस हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में. व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? When an organism consumes solid or liquid organic matter and digests, absorbs and assimilates it, the mode of nutrition is called holozoic nutrition. Holozoic animals can be herbivorous, plant eaters, carnivorous, flesh eaters, or omnivorous, plants as well as flesh eaters. Herbivores may be frugivores, like monkeys that feed mostly on fruits, or fluid feeders like bees, butterflies, etc. Carnivores include insectivorous, insect eaters, piscivorous, fish eaters, and sanguinivorous, bloodsucker, etc. जब एक ऑर्गेनिज्म जो है सॉलिड या लिक्विड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करता है, फिर डाइजेस्ट होता है, फिर एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है, तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक एनिमल्स आपके हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं जो प्लांट्स ईटर होते हैं, आपके कार्निवोर्स भी होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, ओमनीवोर्स भी होते हैं जो दोनों ही खाते हैं, मीन्स आपके प्लांट्स और फ्लैश दो. अब हर्बीवोर्स की भी आपके कैटेगरीज हैं. ये फ्रूगीवोर्स भी हो सकते हैं जैसे कि मंकी जो मोस्टली ये फ्रूट्स खाते हैं, या फ्लूइड फीडर्स भी हो सकते हैं जैसे कि बीज या बटरफ्लाइज हैं. ये जनरली क्या करती हैं, फ्लूइड पे ही तो डिपेंडेंट रहती हैं. अब कार्निवोर्स में आपके आते हैं इंसेक्टिवोरस, ऑफ कोर्स जो इंसेक्ट खाते हैं, पिसीवोरस जो फिश ईटर होते हैं, एंड आपके होते हैं संगुनिवोरस जो ब्लड सकर होते हैं, राइट. स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन. Holozoic nutrition involves 5 main steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. सबसे पहले हम बात करेंगे ingestion. The process of intake of food is called ingestion. The mode of feeding can be sucking, swallowing, chewing, scraping, etc. Sucking. Butterflies, bees and hummingbirds suck nectar from flowers. Human babies and babies of cattle, dogs, etc. suckle mother's milk. Swallowing. Snakes swallow their prey after killing. So do lizards, frogs, etc. Filtering. Aquatic animals filter the food particles floating in water. Example, hydra. Chewing. Cattle, carnivores, human beings chew their food before swallowing. पहला जो प्रोसेस अगर आपका आता है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन का इंजेक्शन, जैसे कि फूड को आप लेते हैं अपने माउथ में, दिस इज नोन एज इंजेक्शन. अब ये मोड ऑफ फीडिंग भी अलग है, मतलब सकिंग, सॉलोइंग, च्यूइंग हो सकता है. सकिंग जैसे बटरफ्लाइज है या बीज है वो नेक्टर सक करते हैं. ह्यूमन बेबीज हैं या बेबीज हैं कैटल या डॉग के, वो मदर का मिल्क सकल करते हैं. सॉलो मतलब जैसे एकदम मतलब उसको बाइट नहीं करना, च्यू नहीं करना, निगल लेना, सॉलो करना है जैसे स्नेक्स करते हैं. फिल्टरिंग होता है, एक्वेटिक एनिमल जो है फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं जो आपके वाटर में फ्लोट कर रहे होते हैं. एग्जाम्पल हाइड्रा. एंड च्यूइंग मतलब सॉलो करने से पहले फूड को च्यू करना जैसे हम करते हैं, राइट. नेक्स्ट इज डाइजेशन. इंजेक्शन के बाद बारी आती है डाइजेशन की. Breaking down of complex food molecules into simpler ones with the help of digestive juice is called digestion. अब हमने ingestion किया, break down होगा अब complex food molecule का simple one में, right, digestive juices की help से. C. Absorption.
After digestion, the food converts to a simple soluble form so that it can be absorbed by the blood and transported to different parts of the body to obtain the required nutrients. अब digestion के बाद क्या होगा, जो food है वो simple soluble form में आपका convert होगा ताकि उसे blood जो है absorb कर सके, उसे body के different part तक transport कर सके, right? D, assimilation. The process of utilizing the absorbed nutrients for energy, growth, reproduction and development by the body is called assimilation. Okay. अब इसके बाद देखिए, अब जो प्रोसेस है यूटिलाइजिंग करने का, यूटिलाइजेशन का, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स का, ओके, मतलब एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, तो इससे कहते हैं एसिमिलेशन. ई, एजेशन. The residual food material that is left after digestion is eliminated from the body in the form of mucus through the process of digestion. अब जितना भी हम खाना खाते हैं वो सारा का सारा डाइजेस्ट तो नहीं होता, तो जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल आपका होता है, जो रेजिडुअल फूड मटेरियल होता है, जो डाइजेशन के बाद बच जाता है, उसको बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट? तो ये होता है आपके डाइजेशन के प्रोसेस से. एक्टिविटी 1, to know the type of food and the mode of feeding in some animals. Find out and note down the type of food eaten and the mode of feeding in the animals given in the table. देखिए, आपको एक टेबल गिवन है, इसमें आपको नेम ऑफ द एनिमल्स दिए हैं, किस तरह का फूड खाते हैं, मोड ऑफ फीडिंग. लाइक जैसे कि आपका बटरफ्लाई है, जैसे हमने पहले पढ़ा बटरफ्लाई का फीड क्या टाइप ऑफ फूड ईटर है, वो तो जनरली लिक्विड सक करती है, नेक्टर सक करती है फ्लावर्स का. मोड ऑफ फीडिंग इज सकिंग. तो इसी तरह से आपने बाकियों का भी लिखना है, राइट? न्यूट्रिशन इन अमीबा. Different organisms have different modes of nutrition. The amoeba is a unicellular organism. It has a jelly-like body and is irregular in shape. It has finger-like projections called pseudopodia, false feet. When a food particle approaches on an amoeba, these pseudopodia encircle the food and get joined to form a cavity. This is called food vacuole. This method of ingestion of food is known as circumvallation. The digestive juices secreted inside the food vacuole break down the food into simple soluble form, which is easy to digest. The digested soluble food is absorbed by the cell through diffusion process. The undigested food gets collected in another vacuole, which is expelled from the body through the cell. अब देखिए, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं. जैसे अमीबा की अगर हम बात करें, ये आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यानी जो सिंगल सेल से बना. इसकी जेली जैसी बॉडी होती है और इसमें एक इरेगुलर शेप होते हैं. इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसे कहते हैं सूडोपोडिया. सूडोपोडिया एक्चुअली इसके फॉल्स फीट होते हैं. तो जब फूड पार्टिकल अमीबा को अप्रोच करता है, तो ये जो सूडोपोडिया होते हैं फूड को एनसर्कल कर लेते हैं, ओके, एंड फिर देन गेट जॉइंट टू फॉर्म अ कैविटी. इसको कहते हैं फूड वैक्यूल. और ये जो मेथड ऑफ इंजेशन है ना फूड का, दिस इज नोन एज सर्कमवेलेशन. तो डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो फूड वैक्यूल के अंदर सिक्रीट होते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में, जिससे कि उसको डाइजेस्ट करना आसान रहता है. तो डाइजेस्टिव सॉल्युबल फूड है आपका, वो एब्जॉर्ब होगा बाय द सेल, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू. अनडाइजेस्टेड फूड जो रहेगा वो कलेक्ट हो जाएगा दूसरे वैक्यूल में, जो कि बॉडी से फिर बाहर निकलेगा थ्रू द सेल, राइट? Know the fact, amoeba was first discovered by August Johann Rochel von Rosenhof in 1757. अमीबा को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था in 1757, right? Activity 2, to collect amoeba and observe pseudopodia. Get water from the bottom of a pond. Carefully observe a drop of this water under a microscope. Examine it for some time and note down your observation. You will notice single-celled amoeba showing movement and engulfing food particles with the help of its pseudopodia. आपको क्या करना है, पॉन्ड का वाटर आपने लेना है फ्रॉम द बॉटम ऑफ पॉन्ड, फिर केयरफुली ड्रॉप लेनी है इस वाटर की अंडर अ माइक्रोस्कोप, इसको ऑब्जर्व करना है. इसको थोड़े टाइम के लिए आप एग्जामाइन करेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करेंगे. आप देखेंगे जो अमीबा है वो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये मूवमेंट शो करेगा, फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करेगा सूडोपोडिया की हेल्प से, राइट? नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. Nutrition in human beings takes place in a well-developed digestive system. The digestive system of human beings is a complex organ system consisting of many organs. अब human body एक well-developed body है, इसका well-developed digestive system होता है. तो digestive system जो human beings का बहुत ही complex organ है, जिसमें आपके बहुत सारे organs हैं, right? The human digestive system. The human tract starts from the mouth and ends with the anus.
It is a tubular pathway called the alimentary canal. The digestive tract and associated glands is called digestive system. The alimentary canal is composed of the following parts: A, mouth and buccal cavity; 2, esophagus; C, stomach; D, small intestine; E, large intestine; F, rectum; G, anus. ह्यूमन ट्रैक आपका माउथ से स्टार्ट होके एनस पे खत्म होता है. ओके एक ट्यूब्यूलर पाथवे है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल. तो एलिमेंट्री कैनाल में देखिए आपके ये सारे ही पार्ट्स हैं, इनसे बना है आपका एलिमेंट्री कैनाल, राइट. नो द फैक्ट, अ पर्सन ईट्स अबाउट 500 किलोग्राम ऑफ फूड पर ईयर. एक पर्सन जो ऑन एन एवरेज हर साल 500 किलोग्राम खाना खाता है, राइट. ए, माउथ एंड बकल कैविटी. The process of ingestion of food starts with the mouth. Our mouth also brings the food to a suitable temperature by either cooling or warming. Digestion of a starch starts from the mouth. The cavity inside the mouth is called buccal cavity. It contains tongue, teeth, salivary glands. Ingestion जो है फूड का कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑफ कोर्स माउथ से, क्योंकि हम माउथ में खाना लेते हैं. ओके अब देखिए माउथ जो डाइजेशन है स्टार्च का, रिमेंबर दैट डाइजेशन जो स्टार्च का है वो माउथ से स्टार्ट होता है. और माउथ के इनसाइड जो कैविटी होती है दैट इज बकल कैविटी, जिसमें आपके होते हैं टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. नंबर 1, टंग. इट इज द मस्कुलर स्ट्रक्चर. इट कंटेन्स taste buds on it to recognize different tastes like sweet, salty, sour or bitter. It also helps in mixing saliva with food and swallowing it. The tongue helps in speaking too. Taste buds for different tastes are located on different regions of the tongue. Let's perform the following activity to check this. टंग आपका एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है. इसमें आपकी टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं ना, कि खाना आपका सावर है, बिटर है, सॉल्टी है, स्वीट है, उसे टेस्ट करते हैं. इसके अलावा ये सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है, सॉलो करने में हेल्प करता है, टंग हमें बोलने में हेल्प करती है. तो जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं डिफरेंट टेस्ट के, वो आपके टंग के डिफरेंट रीजन्स में आपके लोकेटेड होते हैं. चलिए एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं. एक्टिविटी 3, टू नो द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स ऑफ द टंग. Prepare solutions of lemon juice. Lemon juice is sour, sugar is sweet, common salt, of course salty, and crushed bitter gourd or Karela is bitter in taste. Right? In different test tubes. Different test tube में आपको कोई solution बनाना है. Ask one of your friends to close his or her eyes. Ask him her to stick out the tongue and keep it straight. अपने फ्रेंड्स को बुलाना है, आंखें बंद करनी है उसको कहना कि जो अपनी टंग है बिल्कुल बाहर एकदम स्ट्रेट निकालना है. ओके Put a drop of one of the samples in different areas of the tongue. Repeat this with all the 4 solutions. Find out the tastes of the solution used every time and find out the areas of the tongue which could detect the taste. Record your observation. Repeat the activity with some other friends. फिर आपने जितने भी सैम्पल्स है आपको एक ड्रॉप उसका डालना है और इसको जितने भी आपने 4 सोल्यूशंस बनाए उनको रिपीट करना है. फिर आपने फाइंड आउट करना है कि जो टेस्ट है सोल्यूशन का जो हर टाइम यूज़ किया गया, कौन से एरिया पे पता लगा कि ये कौन सा टेस्ट है. ओके मतलब किसने डिटेक्ट किया कि ये टेस्ट है. फिर अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करनी है और सेम एक्टिविटी को आप रिपीट कर सकते हैं बाकी फ्रेंड्स के साथ भी. ओके नंबर 2, टीथ. एन अडल्ट ह्यूमन हैज 32 teeth, 16 each in the upper and the lower jaws. They are individually located in a socket in the jaw. The teeth has 2 parts: crown, the white visible part above the gums. Roots are deep in the socket. The roots of teeth are fixed in gum. Teeth are of 4 types: incisors, canines, premolars and molars. देखिए 32 टीथ होते हैं कि अडल्ट में, अब 16 आपके अपर जॉ में, 16 आपके लोअर जॉ में. और टीथ की अगर हम बात करें तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है क्राउन जो आपका वाइट विजिबल पार्ट होता है ना गम्स के ऊपर, दैट इज क्राउन. और रूट्स आपके डीप होते हैं सॉकेट में. ये आपके 4 तरह के टीथ हैं आपके, राइट. इनके देखिए शेप्स भी आपको यहाँ पे गिवन है, शेप्स भी डिफरेंट है. Teeth perform the functions of cutting, biting, tearing, chewing and grinding, each of which is performed by a different kind of teeth. The description of teeth of each type is as follows. तो टूथ आपके डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक कटिंग करते हैं, बाइटिंग करते हैं, टीयरिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. वो भी अच्छी, ये सारे फंक्शन डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ करते हैं. तो चलिए टेबल के थ्रू समझते हैं जिसमें आपको टाइप एंड नंबर ऑफ टीथ आपके दिए गए. सबसे पहले है आपके पास इंसाइजर्स. टीथ प्रेजेंट इन फ्रंट पे आपको जो नजर आते हैं ना वो आपके इंसाइजर्स होते हैं. अपर जॉ में 4 होंगे, लोअर जॉ में 4 है, टोटल कितने हो गए 8. इनका फंक्शन क्या है? कटिंग एंड बाइटिंग फूड. इसी तरह से कैनाइन आपके होते हैं शार्प टीथ ऑन ईदर साइड ऑफ इंसाइजर्स. इंसाइजर्स के जस्ट बगल में आपके कैनाइन्स होते हैं. 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं और टोटल होते हैं 4. इनका काम क्या होता है? फूड को पियर्स करना, टीयर करना. 3 प्रीमोलर्स ऑन ईदर साइड्स ऑफ कैनाइन्स.
आपके 4 ऊपर होंगे, 4 नीचे होंगे, टोटल 8. इनका फंक्शन होता है फूड को च्यू करना, उसे ग्राइंड करना. एंड नंबर 4 मोलार्स ऑन ईदर साइड ऑफ प्रीमोलर्स. ये आपके 6 होते हैं, ऊपर भी 6, नीचे भी 6 एंड टोटल होते हैं 12. इनका फंक्शन क्या होता है? फूड को च्यू एंड ग्राइंड करना. नोट द नंबर ऑफ टीथ इन चिल्ड्रन इज लेस. बच्चों में जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो कम होते हैं. ओके. Activity 4. To know the type and number of teeth in human. See in the mirror and count your teeth. You will see different types of teeth. Write down their number. Also check the teeth of your friend. Write down the number of different types of teeth in your friend's mouth. Now eat a fruit, say an apple. Try to know which teeth are used for biting and cutting, piercing and tearing and chewing, the grinding the apple. Record your observation. ओके. अब आपको क्या करना है? मिरर में देखना है, अपने टीथ काउंट करने हैं, उनकी जो शेप्स हैं आप उसे ऑब्जर्व करेंगे. फिर आप क्या करेंगे? फ्रूट जैसे आपने एप्पल लिया, ओके, आप उसको फिर आपने चेक करना है कि आपने बाइटिंग एंड कटिंग के लिए कौन सी टीथ को यूज़ किया, पियर्सिंग एंड टियरिंग के लिए, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए, और फिर सारी ऑब्जर्वेशन आपने इस टेबल में मेंशन करनी है. राइट. The teeth in the mouth of an infant are called milk teeth or temporary teeth. They fall off between 6 to 8 years of age. Then permanent teeth come out of the same gums and take their place. Teeth break food into smaller pieces. This helps in swallowing the food. This process is called mastication. जो टीथ होते हैं इन्फेंट के माउथ में उन्हें हम कहते हैं मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ. और ये जनरली जब बच्चा 6 से 8 साल का होता है तो ये गिरने शुरू हो जाते हैं. फिर परमानेंट टीथ इनकी जगह पे आते हैं और उनकी जगह लेते हैं. ओके. नंबर 3 salivary glands. Salivary glands are 3 pairs in number. 1 pair is located near the upper jaw and 2 pairs near the lower jaw. They secrete a watery liquid called saliva in the mouth. Saliva contains an enzyme called salivary amylase or ptyalin. This breaks down starch into simple sugars like glucose. Saliva gets mixed with the food to make swallowing easy. Salivary glands जो है इसके 3 pairs होते हैं. ओके. ये एक वाटरी लिक्विड जिसको बोलते हैं हम सलाइवा, वो सिक्रीट करते हैं. सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेस या फिर टाइलिन. ये क्या करता है? स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक करता है लाइक ग्लूकोज. राइट. बी ओशोफेगस. The mouth cavity or buccal cavity opens in a pipe-like passage called the oesophagus. This is also known as the food pipe. The food pipe runs through the chest parallel to the windpipe in neck. This is just a passage up to the stomach. No digestion takes place inside the oesophagus. Its muscular walls move in a wave-like manner to push the food towards the stomach. These movements are known as peristalsis. It takes place throughout the alimentary canal. आपकी जो माउथ कैविटी या बकल कैविटी होती है एक पाइप लाइक पैसेज में खुलती है जिसे हम कहते हैं ओशोफेगस या फूड पाइप भी हम इसे कहते हैं. ओके. फूड पाइप जो है वो चेस्ट के पैरेलल रन्स थ्रू द चेस्ट पैरेलल टू द विंड पाइप इन नेक. तो ये एक पैसेज होता है अप टू द स्टमक. कोई भी डाइजेशन नहीं होता. रिमेंबर दैट. एशोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता. ये जस्ट एक पैसेज हो जो खाने को लेके जाता है स्टमक तक. राइट. इसकी जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं एक वेव लाइक मैनर में फूड को पुश करती हैं स्टमक में एंड ये जो मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं पेरिस्टल्सिस. ओके. नेक्स्ट सी स्टमक. ओके. माउथ से आपका खाना गया ओशोफेगस में, अब वो जाएगा स्टमक में. राइट. फूड फ्रॉम द ओशोफेगस इज रिसीव्ड बाय द स्टमक. द स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट of the alimentary canal. It is flattened bag-like structure. It is located on the left side in the abdomen below the diaphragm. It secretes gastric juices. आपका जो स्टमक है वाइडेस्ट पार्ट है आपके एलिमेंट्री कैनाल का. एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. राइट. जे शेप में है और ये आपके लेफ्ट साइड में होता है एब्डोमेन में डायफ्राम के नीचे. तो और ये गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करता है. द स्टमक ऑल्सो churns the food and converts into a semi-fluid paste called chyme. Gastric juice contains Number 1, hydrochloric acid, 2, mucus, and 3rd, pepsin enzyme. Number 1, hydrochloric acid. It performs 2 functions. It kills the germ present in the food. It makes the medium acidic for the action of pepsin enzyme. Hydrochloric acid जो आपका स्टमक सिक्रीट करता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं? बेसिकली 2 फंक्शंस हैं. सबसे पहले जो भी आपके जर्म्स प्रेजेंट होंगे फूड में उन्हें किल करेगा. ये मीडियम को एसिडिक बनाएगा फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम. Number 2, mucus. It protects the inner lining of the stomach from the acidic effect of hydrochloric acid. अब क्योंकि स्टमक जो है वो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो म्यूकस क्या करता है कि जो स्टमक की इनर लाइनिंग है इसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एसिडिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एंड नंबर 3, पेप्सिन.
This enzymes start the digestion of proteins by converting them into amino acids. ये enzyme है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन को स्टार्ट करता है, उनको कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड्स में. ओके. D, स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके. अब फूड आपके जो स्टमक है उसके बाद कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में. The small intestine is the most important part of the alimentary canal. It is a very strange to know that the small intestine is actually the longest part of our alimentary canal. It is about 6 meters long and can be up to 3.5 times of the total body length. But it appears to be small as it remains in the coiled form. Food from the stomach reaches the small intestine where the digestion finally gets completed. It receives 3 types of digestive juices. Number 1, intestinal juice from the small intestine. Number 2, bile from the liver. Number 3, pancreatic juice from the pancreas. देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और ये बहुत ही स्ट्रेंज है कि एक्चुअल में आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये सब लॉन्गेस्ट पार्ट है, बट ये हमें छोटा इसलिए नज़र आता है क्योंकि ये कॉइल्ड फॉर्म है. और अगर आप देखें ये आपकी लगभग 6 मीटर लंबी होती है, और आपकी जो टोटल बॉडी लेंथ है उसका लगभग उससे मतलब उसका लगभग आपका 3.5 टाइम्स है ये, राइट. तो स्टमक से आपका खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे डाइजेशन आपका फाइनली कंप्लीट होता है. यहाँ पे भी आपके 3 टाइप्स ऑफ जूसेस ये सिक्रीट करते हैं, रिसीव करते हैं एक्चुअली. Number 1, intestinal juice है. Intestinal juice is secreted by the walls of the small intestine and contains enzymes. Number 2, bile. Bile is secreted by the liver and is stored in a sac-like structure, the gallbladder. Bile जो है, bile को कौन secrete करता है? liver. और ये बैग जैसे स्ट्रक्चर में होता है जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर. ठीक है. It doesn't contain any enzyme. Remember that. इसमें कोई भी enzyme नहीं होते हैं. But it helps in breaking down big molecules of fat into smaller molecules so that their digestion becomes easy. It makes the medium alkaline for the action of other digestive enzymes. Okay, अब इसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं, बट फिर भी ये हेल्प करते हैं बिग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना फैट को, उनको ब्रेक डाउन करने में इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, जिससे कि डाइजेशन इजी हो सके. अब ये मीडियम को अल्कलाइन भी बनाते हैं फॉर द एक्शन ऑफ अदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ओके. Number 3 is pancreatic juice, but उससे पहले देखिए हम देखते हैं. Know the fact. Liver is the largest internal organ in the body. Remember that. And next, small intestine is in fact is larger in length than the larger intestine. Small intestine large intestine से length में बड़ी होती है. Okay. Number 3 is pancreatic juice. It is secreted from the gland associated with the digestive system called pancreas and comes through the pancreatic duct into the small intestine. Pancreatic juice contains enzymes. All the ingredients of foods, that is carbohydrates, proteins and fats, are completely digested in small intestine. Vitamins and minerals do not require digestion. These are absorbed in blood as such. अब देखिए पेनक्रियाटिक जूस कौन से क्रिएट करता है? फ्रॉम द ग्लैंड जो कि एसोसिएटेड होती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाज, और ये पेनक्रियाज डक्ट के थ्रू आता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. पेनक्रियाटिक जूस में आपके एंजाइम्स होते हैं, तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना फूड के आपके, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, है कंप्लीटली डाइजेस्ट होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में. विटामिन एंड मिनरल्स को रिमेंबर दैट इनको डाइजेशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि इनको एज इट इज ब्लड इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट. एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड इन द स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन. The small intestine not only plays a significant role in the digestion of food, but also performs the function of absorption of the digested food. The inner wall of the small intestine has many finger-like projections called villi, singular villus. These villi have a network of blood capillaries just below the surface. The digested food, which has been converted into its simplest forms, comes in contact with these villi and gets absorbed through their wall and mixes with the blood. स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन में तो हेल्प करती है, इसके साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है डाइजेस्टेड फूड का. जो इनर वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ इस तरह से फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम कहते हैं विलाई. ओके, सिंगुलर है विलस आपका. तो ये विलाई नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज जस्ट सरफेस के बिलो. ओके, तो जो डाइजेस्टेड फूड आपका कन्वर्ट हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो आप इन विलाई के कंटैक्ट में आता है, फिर उसके वॉल के थ्रू ये एब्जॉर्ब होता है और ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है. The food reaches each cell of the body through blood. Here in the cell, it is further oxidized in the presence of oxygen and carbon dioxide, and energy is released. The formation of complex substance in the body cells from simple substance and its utilization is called assimilation.
एग्जाम्पल प्रोटीन फॉर्मेशन. अब देखिए सेल में आपका क्या होगा कि फर्दर ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की, एंड देन एनर्जी आपकी रिलीज होगी. तो जो फॉर्मेशन है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का इन द बॉडी सेल्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस एंड इसका जो यूटिलाइजेशन होता है, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. एग्जाम्पल आपका है प्रोटीन फॉर्मेशन. ई लार्ज इंटेस्टाइन. The food that is left indigested is passed on to the large intestine. It is a 1.5 meter long tube that absorbs water and necessary salts from indigestible food. The remaining part of the food is now pushed towards the rectum. अब देखिए आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड होगा. अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का या जो भी नेसेसरी सॉल्ट्स होंगे उस इनडाइजेस्टेबल फूड से. फिर जो रिमेनिंग पार्ट है उसको पुश किया जाएगा थ्रू द टुवर्ड्स द रेक्टम, रेक्टम के टुवर्ड्स. F. Rectum. The rectum stores the undigested food that has been converted to semi-solid material called fecus. It is removed from time to time. फिर rectum इस undigested food को एक store करेगा, okay, और जो कि आपका semi-solid material में convert हो चुका है, फिर इसको time to time remove किया जाता है. G. Anus. The anus is the opening through which fecus is egested or removed out. This process is called defecation. फिर anus क्या करता है, एक opening होती है जिसके ये जो आपका वेस्ट पार्ट है, वेस्ट मटेरियल है, राइट, आपका जो फेकस है वो बॉडी से बाहर निकलता है, राइट. न्यूट्रिशन इन ruminants. Herbivorous animals like cows, goats, sheep, buffaloes, etc. eat grass and small plants as their fodder. This fodder is rich in a special substance called cellulose, but the digestive system does not have any enzyme to digest cellulose. So they digest cellulose with the help of a symbiotic bacteria that lives in a special part of their stomach called the rumen, and such animals are called ruminants. Ruminants have a specialized digestive system. Their stomach has 4 chambers: A. rumen, B. reticulum, C. omasum, and D. abomasum. Herbivorous animals जो होते हैं वो घास खाते हैं, ओके, या फॉडर खाते हैं. तो ये जो फॉडर होता है इनमें एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं सेल्यूलोज. लेकिन इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं होता जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके. तो ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कि उनके स्टमक एक स्पेशल पार्ट में रहता है जिसे कहते हैं रुमेन, और ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है रुमिनेंट्स. तो रुमिनेंट्स के स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, उनके स्टमक के 4 चेम्बर्स होते हैं, राइट. दे इंजेस्ट food through their mouth and swallow it very quickly even without chewing it. This food goes to the rumen after passing through the esophagus. It is the largest chamber of the stomach. Cellulose of the food gets digested over here with the help of symbiotic bacteria. Of course अपने माउथ से इंजेस्ट करेंगे, उसको सॉलो करते हैं बहुत जल्दी जल्दी, मतलब बिना उसको चबाए. फिर ये रुमेन से आपका पास होता है, रुमेन में जाता है, ओशोफेगस से पास होता है. ये स्टमक का लार्जेस्ट चैम्बर है. सेल्यूलोज फिर फूड का जो है यहाँ पे डाइजेस्ट होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की हेल्प से. Next, then the food goes to the reticulum. Here the food is digested and converted into a pulpy mass called cud. This cud returns back to the mouth while the animal is resting. The animal then chews the cud very patiently for a long time. This process is called rumination. अब ये जो food का जाएगा रेटिकुलम में, यहाँ पे फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है और एक पल्पी मास में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं कट. फिर ये कट क्या होता है? जब भी एनिमल ना रेस्ट कर रहे होते हैं वापस अपने माउथ में से लेकर आते हैं, फिर इसको ये थॉरली च्यू करते हैं बहुत ही पेशेंटली, और इस प्रोसेस को कहते हैं रुमिनेशन. C. The chewed cud goes to the third chamber called the omasum. This is the smallest chamber. Here the water is absorbed from the cud. अब ये जो कड को ये च्यू करते हैं, फिर च्यूड कड जो है वो थर्ड चेंबर में जाता है जिसे कहते हैं ओमेजम. छोटा सा चेंबर होता है जहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होता है कड से. D. The food is then pushed to the fourth chamber, abomasum, the true stomach. In this chamber, digestive enzymes are secreted and digestion is further carried on. अब फूड इसके बाद कहाँ जाएगा? चौथे चेंबर में जिसका नाम है abomasum, which is the true stomach. इस चेंबर में डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके सिक्रीट होते हैं, फिर डाइजेशन आपका होता है. Now the digested food is pushed into the small intestine for absorption. The digested food is absorbed and the indigestible food is passed onto the large intestine and eventually digested. अब आपका डाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा अब्जॉर्प्शन के लिए. फिर जो डाइजेस्टेड फूड है वो अब्जॉर्ब होगा और जो इनडाइजेस्टेबल फूड है वो पास डाउन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में और इवेंचुअली इंजेस्टेड होगा, यानी कि बॉडी से आपका बाहर जाएगा, राइट. सो चिल्ड्रन,
आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.